So you people can imagine a day without gravity. Means the earth lost its gravity for one day. Just imagine the earth loses its gravity for one day. Similarly, when you sit in the examination and you do not have the formula in your head, what will happen? Let's come to the geometry portion. Geometry portion. And here we have polygon. Polygon and its shapes. Okay. Polygon and different kind of shapes. Okay. What do you mean by a polygon? It means three or more sided figure. Three or more sided. Three or more than three sided figure. That is closed figure. Okay. This is closed figure. Closed figure is known as a polygon because the polygon with the lowest degree starts with the triangle. Okay. Because a triangle has three sides. Now, what is the sum of all interior angles? Interior angles of a polygon. Angles of a polygon. So before I tell you this, why not to make a polygon? For example, let us make a pentagon. This is your pentagon, or a pentagon has 5 sides. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Now when all the sides are equal, it is known as a regular pentagon. Regular pentagon. Let the number of sides be n. So instead of 5 sides, why not to say that number of sides of this particular polygon is equal to n, for example. So sum of all the interior angles, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ये वाला, ये सब का जोड़ जो होगा, sum of all the interior angles will be equal to n minus 2 into 180 डिग्री. ये हो गया. और अगर पॉलीगॉन अगर रेगुलर है, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन और व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जाहिर सी बात है कि ऑल एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. नहीं, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल. सो व्हेन ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच एंगल क्या होगा? ईच एंगल विल बी इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल जो कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स और द नंबर ऑफ एंगल्स ऑल्सो यू कैन से. ठीक है. नाउ हैव ए लुक ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे n चेंज होगा वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ द टोटल इंटीरियर एंगल विल ऑल्सो चेंज. लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर एक साइड को प्रोड्यूस करे, सो दिस बिकम्स योर एक्सटीरियर एंगल. ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया. ये रेड वाला जो देख रहे हैं ना, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. ऑलवेज प्रोड्यूस द साइड्स इन ऑर्डर. ठीक है ना, आप साइड्स से इसको ऑर्डर में प्रोड्यूस कीजिएगा. और अच्छी बात यह है कि ये सभी एक्सटीरियर एंगल का जोड़ जो होता है इक्वल टू 360 डिग्री. इजंट इट? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. और अगर पॉलीगॉन अगर रेगुलर रहा, तो रेगुलर में क्या होगा? ईच एंगल ऑफ a regular polygon will be equal to 360 divided by n. तो सबसे अच्छी बात ये है कि if you have interior angle is given, माने रेगुलर पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल इज गिवन, देन यू कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल. कैसे भाई? क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 180 माइनस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू योर एक्सटीरियर एंगल. नहीं, जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल जो है इक्वल टू 120 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालिए. 180 माइनस 120 is equal to 60 degree. When exterior angle is 60 degree, can't you find out the number of sides? Total angle divided by each of the angle करेंगे तो number of आपका sides आपका निकल जाएगा. क्या दिक्कत है ना? सिमिलरली अगर 4 साइडेड अगर फिगर है तो 4 साइडेड फिगर में 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 180. ओके. सो here what we find that, however, if you know that interior angle, however, we should always remember that if
number of sides are given, एक मिनट, are number of sides can be found out by two methods. पहला n minus 2 into 180 degree divided by each interior angle, क्योंकि total interior angle है, each interior angle. Similarly 360 degree by each exterior angle. So number of sides can be found out by this method. Or you can say that how can you find out the total interior angle and total exterior angle? So exterior angle you do not have any issue, but with the total interior angle it is n minus 2 into 180 degree. फिर हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि when two lines are parallel and at transversal cuts, तो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये दोनों क्या है, इधर दोनों they are alternate angle. Means if one is x, the other will also be x. If one is 60, this will also be 60. फिर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि हमेशा whenever the line is given a straight line, then the sum of these two will be equal to 180 degree. These are supplementary angles. ठीक है. और भी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है को इंटीरियर एंगल, जो कि आप लोग भूल जाते हैं. को इंटीरियर एंगल. So co-interior angle में the same thing is there when two lines are parallel and a transversal cuts. तो यहाँ क्या देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, whatever it might be. For example ये इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू y, तो ये x plus y is equal to, always will be equal to 180 degree. Why? Because they are co-interior angles. फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपीजियम में. अच्छा, इसका यूज़ होता है कहाँ, ट्रेपीजियम में. यू कैन सी दैट इन अ ट्रेपीजियम व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाला आप देख सकते हैं कि these two sides are parallel in a trapezium. Okay, only one pair of opposite sides is parallel, तो उसको parallel. तो यहाँ पे ये वाला दोनों को इंटीरियर एंगल बना. Here, so here this is your x and this is your y, so it is very natural that x plus y will be equal to 180 degree. ठीक है. और अगर कोई भी ट्रेपीजियम का अगर टू साइड्स, अगर टू नॉन पैरेलल साइड्स, इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि पैरेलल तो हमारा ये है ना. तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स हमारा अगर इक्वल हो जाए तो इन दैट केस इट इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रेपीजियम. क्या बोलेंगे इसको, ISOCELES, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम. ठीक है. फिर आ जाते हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, व्हेन सिर्फ एक ही अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम. और अगर दोनों इवन नॉन पैरेलल साइड भी अगर पैरेलल हो जाए, isn't it, अगर नॉन पैरेलल साइड भी अगर पैरेलल हो जाए, फॉर एग्जांपल ओवर हियर लेट अस सी, ये वाला तो हमारा पैरेलल साइड था बाबा, ये वाला सी, दिस वाज पैरेलल टू दिस. ओके, दिस वाज पैरेलल टू दिस. ओके, दिस पैरेलल टू दिस. अब कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड से अगर वो भी अगर पैरेलल अगर हो जाए, वो भी अगर पैरेलल हो जाए, तो दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम. ठीक है ना. इसका प्रॉपर्टी और भी हम लोग पढ़ेंगे. सो इन अ पैरेललोग्राम यू कैन सी दैट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा तो इक्वल भी होगा. यानी ये काम कर सकते हैं कि अ rectangle is a parallelogram. A square is a parallelogram. But you cannot say that a parallelogram is a rectangle or a square. Reverse is not possible. ठीक है. और जब जाहिर सी बात है, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो आपका इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो है आपका इक्वल होगा. दिस एंगल विल बी दिस और ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये होगा ये. उसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल को अगर देखते हैं, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल एंड दिस इज अ स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. इसको स्क्वायर मानते हैं इसको आप यहाँ. ओके, तो इन स्क्वायर
square what we find that all the sides are equal. ये all sides are equal. Rectangle में क्या होता है, opposite sides are equal. This is equal to this and this is equal to this. So you can say that a square is a rectangle. A square is a rectangle. Why? क्योंकि देखो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी स्क्वायर में है. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल. भले all the sides are equal but opposite sides are equal. Similarly here all the angles are 90 degree. तो square में भी all the sides are equal to 90 degree. So you can say a rectangle is a square but square is a rectangle but a rectangle cannot be a square. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम एक रोम्बस में. रोम्बस का भी देख ले जरा सा चेहरा. रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस को हम लोग ये कह सकते हैं, स्क्वायर इज अ रोम्बस ऑल्सो. अ स्क्वायर is, you can say that, we can say one, no, wait, a square and in comparing rhombus with a square, let's see, in the square all the sides are equal. Very good. Here also all the sides are equal. Here all the sides are equal. So let me see, these are the sides which are equal. Here also all the sides are equal, so no issue is there. Now here in square all the angles are 90 degree, but the problem over here is that angles in a rhombus are not equal to 90 degree. Here angles is equal to 90 degree. तो जाहिर सी बात है कि इसका डायगोनल बराबर होगा. डायगोनल्स आर इक्वल और इसका डायगोनल जो है diagonal they are not equal. ठीक है. खुशी की बात ये है कि here also the diagonal will bisect each other at right angle. ये वाला this will bisect at right angle and here also the diagonals will bisect each other at right angle. ठीक है. आ जाइए अब थोड़ा सा मेंसुरेशन में थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि कुछ अगर फार्मूला अगर रटवा सके तो ठीक है. In mensuration, no time is there and even you want to hurry up browsing this. तो mensuration में आ जाते हैं perimeter of a triangle. तो perimeter of a triangle कौन नहीं जानता है, is equal to sum of sides, है ना जी. उसी तरह कोई भी साइड्स, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में बाबूजी क्या देखेंगे, दिस इज ए बी एंड सी. तो द पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. काम खत्म. सम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स. तो हमने सम ऑफ द साइड किया. सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to, you people know it. What do you know? Perimeter of a rectangle, ये हमारा लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो perimeter is equal to 2l plus b. What about perimeter of a square? तो बेटा perimeter of a square is equal to, see all the sides are equal. मान लिया एक साइड a है तो is equal to 4 into a, 4 into side. हो गया ये. ओके. और भी अगर कुछ देखना है, फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज योर सर्कल, ये वाला, और ये हो गया आपका रेडियस हो गया, ये वाला हो गया रेडियस. तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर वेर पाई का वैल्यू इज इक्वल टू 22/7, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट, वी से इक्विवेलेंट टू. ओके. और sometimes they might give you 3.142. ठीक है. तो if they give you this value you use this one. If they just say that pi equal to 22/7 or they have not given, you can use this. ठीक है. So here this is the perimeter. Now अब ये सब का एरिया भी तो होगा. तो देखते हैं विचित्र तरह का हमारा ट्रायंगल मिलेगा. ओके. सो here in फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसीलिए पेरीमीटर खत्म कर दिए. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या देखते हैं जरा सा, ये इस तरह का भी ट्रायंगल मिल सकता है जिसमें यू विल हैव बेस
एंड यू विल हैव हाइट ऑल्सो। ओके, हाइट, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इसका। अगर बेस और हाइट है तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना है, ठीक है। Sometimes what happens, they will just give you the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला दे दिया बेस और ये वाला दे दिया हाइट, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी एरिया वही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर, यू कैन से फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। ओके, अब आ जाइए हमारा, अगर इफ हाइट इज नॉट गिवन, हाइट इज नॉट गिवन, ओके, ओनली साइड्स आर गिवन, ठीक है। तो साइड्स आर गिवन मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द हाइट, दे विल जस्ट गिव यू ए, बी एंड सी, सिर्फ दे देगा साइड। तो करेंगे क्या हम लोग, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं। और हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है भाई, लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू एस, फिर एस माइनस ए, ओके, देन वी हैव एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ठीक है, जहाँ पर ए बी एंड सी आर द साइड्स, वाइल एस जो लिखे हैं एस, ये और कुछ नहीं है, ये है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आप लोग तो जानते हैं, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी विल बी द पेरीमीटर, इसका आधा करेंगे तो ये मिल गया सेमी पेरीमीटर का हाफ। दिस मीन्स एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई हेरोन्स फार्मूला। कभी कभी क्या होता है यार कि इन एनी पर्टिकुलर ट्रायंगल, कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे ये वाला में कभी कभी दे विल गिव यू अ ट्रायंगल लाइक दिस, ट्रायंगल, नो सॉरी, ये वाला इसे क्यों हमने कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं है, आई एम गोइंग टू गिव इट डिफरेंट शेप। जब गलतियां कर ही दिया मैं तो इसको ठीक करना भी मुझे आता है। समटाइम्स दे विल गिव यू एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, नहीं ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये एंगल जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट जो है ना बाहर में दिया रहेगा, हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सो हाफ बेस लेंगे, यहाँ से यहीं तक लेंगे हम लोग, यही हो गया हमारा बेस, दिस इज माई बेस एंड माई हाइट विल बी दिस वन, हाफ बी इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, वाइल, अच्छा अब एक चले आते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा बाबू, इज इक्वल टू √3/4 इंटू, एक अगर साइड दिया हुआ ए तो इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, once again √3/4 into a square is the area of the equilateral triangle। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, it depends upon you, ठीक है, लेकिन फार्मूला जो है ना, फार्मूला भूलना नहीं है, जैसे करके भी हो। ओके, नाउ हैव ए लुक, कभी कभी क्या होगा यहाँ पे कि समटाइम्स रेक्टेंगल कैन बी गिवन टू यू, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या होगा कि इन अ रेक्टेंगल दे विल गिव यू द डायगोनल, मान लिया जाए ये वाला डायगोनल बोलेगा, डायगोनल निकालने के लिए, ठीक है, दे विल गिव यू द लेंथ एंड देन द ब्रेथ विल बी गिवन, बोलेगा डायगोनल निकालो, डायगोनल तो देख ही लिया होगा ना, तो इसका डेफिनेशन क्यों लिखे, यहाँ पे समय नहीं है हमारे पास में। तो डायगोनल डी विल बी इक्वल टू, तो ये सी हैव ए लुक, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं ना जी, पाइथागोरस यूज करते हैं टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे डायगोनल कुछ नहीं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। सो इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल। ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते ही हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड
डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह एरिया ऑफ ए स्क्वायर आ जाइए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लेट मी ड्रॉ ए स्क्वायर, ये वाला हो गया आपका स्क्वायर, हो गया आपका स्क्वायर, और साइड हमारा ए हो गया, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स साइड इंटू साइड। जिस तरह यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ किए उसी तरह ए इंटू ए, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक डायगोनल है, इसका भी डायगोनल है ना, तो इसका जो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होगा ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, डायगोनल विल बी इक्वल टू साइड इंटू रूट टू, कोई भी माने ए रूट टू, इसको कह सकते हैं ए रूट टू, ए मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। रूट टू ए नहीं लिखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ए, द चिल्ड्रन दे थिंक दैट ए इज इनसाइड द रूट, दैट इज व्हाई वी राइट ए रूट टू लाइक दिस। इसके रिवर्स में आप जा सकते हैं, यू कैन फाइंड व्हेन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, तो साइड आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जिस तरह डी इज इक्वल टू ए रूट टू, उसी तरह सिमिलरली अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर चले तो ए का वैल्यू होगा मेरा डी बाई रूट टू, है कि नहीं, डी बाई रूट टू। सो इट्स बेटर इफ यू नो वन ऑफ द फार्मूला। उसके बाद में आ जाते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस, यू वंस अगेन लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर रोम्बस, ठीक है, अच्छा लगता है ना फिगर बनाने में, ओके। एंड you people can see that I am not taking much of your time. So this all the sides are equal, it is a rhombus, जैसे भी है समझ जाओ, this is a rhombus, है ना। इसका भी एक डायगोनल है बाबू, ये वाला, this is D1, this is ये पहला डायगोनल और ये वाला दूसरा डायगोनल, ये इसको D2 बोलते हैं। तो एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोलते हैं। वट एवर इज द वैल्यू यू फाइंड इट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि ऑल्सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है एंड इक्वल, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। देयरफॉर हम एरिया कभी कभी ये भी लगा देंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला बेस हो गया। इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज गिवन, यू कैन यूज द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चले आप, जब ये वाला सीखी गया तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा चले। अच्छा, एक चीज़ और भी है, पैरेललोग्राम के बारे में हमने आपको बताया नहीं कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम हो, ये वाला पैरेललोग्राम का मतलब समझ रहे हैं ना जी, ये वाला पैरेललोग्राम है। इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके, in which the opposite sides are parallel and they are equal also। अगर ये बेस दिया हुआ हो और हाइट अगर पैरेललोग्राम का दिया हुआ हो, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नो सॉरी, ओनली बेस इंटू हाइट होगा बेटा, बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि याद है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमारा एल इंटू बी था ना, तो उसी तरह बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। चलो, अब एक काम हम लोग करते हैं, उसी तरह रोम्बस का भी एरिया कभी कभी बेस इंटू हाइट होगा इफ व्हेन हाइट इज गिवन। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, हमने ट्रेपीजियम को शायद हमने नहीं किया, याद नहीं है, ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, यू नो एरिया, दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये वाला देख सकते हैं, ये है आपका ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम में एक साइड अपोजिट साइड पैरेलल है बस। इफ द लेंथ ऑफ दिस वन इज ए, अगर इसका लेंथ अगर ए हो, इसका लेंथ बी हो, एंड हाइट इज गिवन, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी multiplied by h, मतलब half sum of parallel sides multiplied by h, okay. Now what happens that questions will be given on find area of the path outside और inside, you can say inside ही बोलेंगे हम लोग, inside a rectangle, किसी के घर में क्यों जाए, रेक्टेंगल मीन्स पहले क्या करेगा, क्या वो कि फर्स्ट दे विल गिव यू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, बोलेगा कि देखो बाबू
this is a rectangle, and in this rectangle the length is, this is my length L, and this is my external breadth B. बोलेगा एक पाथ है चारों तरफ, जो कि पाथ है, जो कि पाथ ऑफ विथ भी दे देगा, दिस इज इक्वल टू x मान लिया जाए, ओके, विच इज ड्रॉन इनसाइड दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. तो बोलेगा एरिया ऑफ पाथ निकालिए, ये वाला एरिया ऑफ पाथ आप निकालिए, ये वाला, ठीक है ना. तो एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू, एक मिनट, एरिया ऑफ पाथ, समय नहीं बर्बाद होना चाहिए, पाथ शुड बी इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. तो ठीक है, आउटर एरिया तो L इंटू बी है हमारा, आउटर एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी हो गया हमारा. ये इनर एरिया क्या होगा, तो इनर एरिया के लिए भी चाहिए मुझे लेंथ एंड ब्रेथ. तो यहाँ देख लो बाबू, ये वाला जो इनर एरिया, ये इनर लेंथ जो होगा, ये इनर लेंथ यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ x घटेगा ना, मतलब कैपिटल L में से ट्वाइस थिकनेस घट जाएगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू योर इनर लेंथ. सिमिलरली योर इनर ब्रेथ विल बी इक्वल टू, क्या होगा इनर ब्रेथ, ये वाला इनर ब्रेथ विल बी इक्वल टू, आ जाओ यहाँ पे, ये वाला ब्रेथ विल बी इक्वल टू, ये टोटल बी था है ना, कैपिटल बी, उसमें से थोड़ा थोड़ा घटाओ तो x दोनों तरफ से, यानी कि कैप बाहर वाला बी में से ट्वाइस थिकनेस हम लोग घटा देंगे. दिस इज माई L इंटू बी. तो आप, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल का एरिया जो कि L इंटू बी है, और इनर रेक्टेंगल, तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ जो होगा आपका, लेंथ विल बी इक्वल टू बाहर वाला में से x घटा देंगे. सिमिलरली अगर हमारा रेक्टेंगल अगर बाहर में ड्रॉ किया गया हो, ठीक है, तो यू विल हैव टू ऐड इट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से. ओके, आप हमारे भावना को शायद समझ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि दे विल गिव यू अ रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल बोलेगा, ओके, आई हैव गिवन यू रेक्टेंगल, और बोलेगा कि रेक्टेंगल मीन्स दे विल गिव यू द लेंथ एंड दे विल गिव यू द ब्रेथ ऑल्सो, और बोलेगा कि बीचों बीच जो है ना रोड गया है, ये बीचों बीच रोड गया है, ऐसे और ऐसे करके ये रोड गया है, जिसमें कि रोड का थिकनेस जो है, ये वाला थिकनेस इज x, ठीक है, तो इसका भी होगा x. तो हियर एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ, एरिया ऑफ पाथ जो देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया ऑफ पाथ के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ. एरिया ऑफ पाथ, ये वाला, ये एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू area of road lengthwise ये वाला, प्लस area of road breadthwise, okay, means this one, minus area of middle portion, पोर्शन, क्योंकि बीच वाला दो बार आ गया, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका दो बार आ गया. तो हियर एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू, क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा L, ये वाला L इंटू एक्स, एल एक्स प्लस बी, ये B इंटू एक्स, बी एक्स माइनस बीच वाला दो बार चला आया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, बीच वाला स्क्वायर हो गया. सो एल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द थिकनेस, x इज द थिकनेस, ठीक है. अब चले आते हैं, थोड़ा सा, कितना समय हो गया जी, 28 हो, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट और, isn't it? नाउ लेट अस कम टू सर्कल. तो बाबू सर्कल जो है ना, ये हमारा सर्कल, ठीक है, आज इसको कंप्लीट ही कर दें हम. ये सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल हो गया आपका, देखो कितना सुंदर सर्कल है. सो दिस इज अ सर्कल इन विच रेडियस इज गिवन. हमने आपको बता चुका था कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हमने ये भी बताया था पेरीमीटर मतलब सरकमफरेंस, नहीं सरकमफरेंस, ये वाला, ये दिस वन, ओके, द पाथ. और फिर एरिया क्या होगा इसका, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो आर का बहुत बड़ा खेला है. So what will happen, they will give you diameter, especially they will give you the diameter,
ठीक है। और डायमीटर तो आप जानते हैं, क्लास 8 का स्टूडेंट है तो दिस इज द डायमीटर। तो व्हेन डायमीटर इज गिवन देन यू कैन फाइंड आउट रेडियस बाय डिवाइडिंग द डायमीटर बाय 2, इजंट इट? दोनों का खेल ये, दोनों का रिलेशन है दैट रेडियस इज इक्वल टू हाफ द डायमीटर, ठीक है। अच्छा चलो, अब जब ये हम जब पढ़ ही लिए हैं तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा और हम लोग लेते हैं कर यहाँ पे बाबू कॉमन। समटाइम्स यू नो इन सम ऑफ द क्वेश्चंस क्या बोलेगा कि हम इसका दे रहे हैं ये वाला, दिस इज योर हेमिस्फीयर, सॉरी नॉट हेमिस्फीयर, स्फीयर बोलेंगे तब तो 3D हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, विल बी इक्वल टू, ये पूरा लाल वाला देखिए, तो पूरा लाल वाला में बाबू आ जाओ यहाँ से, ये वाला इसको खींचो यहाँ से, ये वाला विल बी इक्वल टू टोटल का क्या था, टोटल का 2 पाई आर, तो इस आधा का तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस ये वाला लेके चले आते हैं, आओ जी यहाँ, दिस इज द डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r, r कॉमन लोगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 2, सो दिस इज r multiplied by pi plus 2 is the perimeter of this semicircle including the diameter। और फिर थोड़ा सा है प्रोबेबिलिटी में, ओके, प्रोबेबिलिटी के लास्ट चैप्टर में ये वाला दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, एन इवेंट क्या होता है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। दिस इज द ओनली फार्मूला। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक तो बता देते हैं तो दिमाग में हो जाएगा क्लियर कि व्हेन यू ऑन टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन टॉसिंग ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो जब 2 कॉइन्स को टॉस अगर करेंगे तो व्हाट विल द टोटल आउटकम्स बी, तो आउटकम्स टोटल हमारा मिलेगा हेड टेल, नहीं तो टेल हेड मिलेगा, नहीं तो हमें मिल सकता है हेड, ठीक है, या नहीं तो टेल मिलेगा, टेल मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो ये हो गया टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही मिलेगा। अब कह रहा है कि इफ व्हेन यू आर आस्क्ड, व्हेन द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड probability of getting at least one head, at least समझो, at least one head, तो at least one head मतलब कम से कम एक हेड, तो 2 हेड वाला भी चलेगा, एक हेड वाला भी, एक हेड वाला, मतलब फेवरेबल आउटकम जो हमने लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला फेवरेबल आउटकम दिस विल बी ओनली 3, वाइल हमारा टोटल जो है, टोटल आउटकम हमारा था 4, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो चाहिए 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम which is 4, so 3/4। I hope I have tried my level best। इतना पढ़ने के बाद में मुझे लगता है you will at least do some better, okay, if you keep on revising this every day। चलो।